Have you done, students? So which chapter? Lines and angles. Yes, sir. Yes, sir. So now please tell me, what is a line? What is a line? A line is a breathless length. Breathless. Please stand up, one student. Any one student. Let me call Viraj from Viraj, please come. Viraj. Beta, please tell me the difference between line segment and ray. What is the difference between these three things? The line is breathless length, and हाँ the जी। line segment is the line between two points, and the ray is the line which has one endpoint and no other. Yeah, very good student. Right? So line, please sit down. Line is a breathless length which can be extended. Means when I say line, it can be extended in both the direction endlessly. When I say line segment, this is a fixed line with Yes, two points. When I say ray, it has one end point. point, and on the other side it can be extended infinite. Clear? Yes, sir. Right. Now, when we say line, how many type of lines we have? We have type of lines or pair of lines. When I say pair of lines, yes, one is a parallel lines, Yes, sir. another is Perpendicular intersecting lines. no talking, please, no talking. Please, whatever the doubt, please ask me. Teacher, you are requested to maintain the decorum. Yes, sir. Right? When I say the pair of lines, one is the parallel lines. Right? What are the parallel lines? What are the parallel lines, students? Sir, the lines which do not intersect each other, non-intersecting lines which are like non-intersecting Arun from section B. हो गई हैं। तो ये जो सेक्शन बी है ना, इसकी कैमरा की पोजीशनिंग ठीक करो जरा. I can कैमरा थोड़ा छोटा है तो सारी क्लास नहीं आ पा रही। only see the handful of students. ठीक करो बच्चे, ट्राई करो थोड़ा सा. No talking, students. Arun from section B, please come. Is any teacher present in the classes? Section B especially. Section B. Is there some teacher? Ma'am, can you come in the screen for a moment? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. My humble request to you, please maintain the decorum in the class. Okay, sir. Actually, sir, because there is a camera is not proper setup, and that's why students are disturbed. So please make it whatever I the. will call the computer teacher, sir. Don't worry, sir. इसको थोड़ा मैम please try to adjust this so that I can have a look of the students. Please send ma'am Arun. हेलो यस सर। बच्चे पहले तो थोड़ा मुझे कुछ बच्चे नजर भी आ रहे थे, अभी आपने कैमरे की पोजीशन ऐसे कर दी, आई कांट सी एनीवन. ओके सर। हाँ जी अरुण, प्लीज टेल मी सम एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, सम रियल लाइफ एग्जांपल्स. बेटा आगे देख के बोलो, पीछे से हेल्प नहीं ले रही है. एंड द फ्रंट बेंच स्टूडेंट प्लीज कीप क्वाइट. यू जस्ट स्टैंड अप, द सेंटर वन स्टैंड अप. आप पीछे देख रहे हो ना, जो इधर उधर देख रहे हो, प्लीज स्टैंड अप. सेंटर वन. हाँ जी, आपको ही बोला जा रहा है बेटा, आपको पता है आपको बोला जा रहा है. प्लीज स्टैंड अप, टेक योर नोटबुक्स एंड गो टू द बैक बेंच.
लास्ट बेंच पे चले जाए आप. Right? Yes, Arun, tell me beta some examples of parallel lines. हाँ जी. सबसे पहला तो बेटा बड़ा कॉमन है रेलवे ट्रैक और रेल लाइंस. दे आर पैरेलल. रेल लाइंस होती है पैरेलल रहती है बेटा. द डिस्टेंस रिमेन द सेम Yes, बिटवीन sir. एनी Yes. अदर थिंग. Yes, sir. Yes, sir. आपका जो टेबल है बेटा, राइट, जस्ट लुक एट द टेबल. द these are the parallel lines, Yes, sir. right or not? Yes, sir. There are so many examples in real life. The walls of a room, are they parallel? Yes, sir. Right? So we should know na bache whatever we are studying, right? Some real life examples. Okay, now please sit down. Another type of lines is intersecting line. Intersecting lines. What do you mean by intersecting lines? The lines which intersect each other and have a common point. This is a common point. Now tell me one thing. What is the difference between intersect and bisect? जिससे पूछा जाएगा बेटा वही आंसर करेगा अमृत पाल फ्रॉम सेक्शन बी. Difference between intersect and bisect. Good morning, sir. Good morning. Yeah, please tell me what is intersect and bisect. Intersecting, sir, the lines which intersect with each other. अच्छा, और bisect which bisect with each other. What is bisect? हाँ जी, Yes. bisect क्या होता है बेटा? Yes, here to you tell me this girl student on the second row in section B. Who she has raised her hand. Sir, in bisect, sir, at intersect, any points just passes through a ray and make an angle. In bisect, the line just passes from the center and just in the equal distance from the equal distance. Can you give me some examples of bisect? Yes. Your definition is correct. Please sit down. Bisects means when the lines divides in equal part. For example, you know what is the median of a triangle? What is the meaning of median? If I say median of a triangle, this is a triangle. Yes, sir. Median is the line drawn from a vertex. Let's say this is vertex. If you draw a line which bisects the opposite side in equal parts, this line is known as median. Right? So please no talking. B section. What is the problem to you? Sorry, sir. Sorry, sir. When I say median, this line will bisect the opposite side into equal part. Another example is parallelogram. Right? Diagonals of parallelogram bisect each other. Yes. Right? So that is bisector. Is this clear? Yes. Now intersection. Let's say these two lines are meeting. Right? So this is intersect. Not necessarily they divide in equal part. सर हाँ जी. सर अगर 90 डिग्री का एंगल है और उसके बीच में हमने एक रे बनाई है जो 45 डिग्री पर है और वो बाइसेक्ट कर रही है. वो एंगल बाइसेक्टर हो गया. ओके. There is a difference between bisector. When I am saying line bisector and angle bisector, there are few terms which will come across. One term is right bisector. What do you mean by right bisector? What you have told me that is an angle bisector. Bisector का meaning है बच्चों कि divide in equal parts. Is this clear?
Yes, sir. That can be line, that can be angle. If it is angle, that is angle bisector. Line, that is line bisector. When I say right bisector, what is the meaning of this? It has two things. Right stand for right angle, bisector in equal parts. Is this clear? Yes, sir. Now take an example. Example is this. Let's say we have an isosceles triangle or an equilateral triangle. Is this clear? Yes, sir. If you drop the perpendicular from this vertex, right? Yes, sir. Perpendicular. This perpendicular is a right bisector. Why? Because it is making the right angle also, it is bisecting also. Okay. Is this clear? This is Yes. median also. This is median also. This is right bisector also. Perpendicular. Right means right angle, which bisected right angle. We take another example. Right? What is a square? Square which has four equal sides, all equal sides. All equal sides. Does it diagonals bisect each other? Yes, sir. Yes or no? नो वाले हैंड रेज कीजिए बच्चे. अच्छा चलो यस वाले हैंड रेज कीजिए. नन ऑफ द अबव वाले हो गए सारे. हाँ जी प्लीज यस वाले. Yes, नॉर्मली सेज यस. सर यस क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. बेटा जो स्क्वायर होता है ना, सी व्हेन आई से पैरेललोग्राम, व्हेन आई से पैरेललोग्राम, प्लीज लिसन, नो टॉकिंग. Second bench, B section, these girls, these four girls are continuously talking. Then please take care of them. Second bench, all four girls in the camera. Right, students. So when I see parallelogram, is this clear? What is the condition for parallelogram? The opposite side should be parallel. Is it clear? Yes, sir. So a parallelogram is that figure which has both the opposite pair of lines parallel. So a rhombus is also a parallelogram, a square is also a parallelogram, a rectangle is also a parallelogram. So they will satisfy all the conditions of a parallelogram. What are the conditions for parallelogram? Opposite pair of sides parallel, diagonal bisect each other. These two conditions will be common to all these figures. So what is the difference between a parallelogram, right, and a rhombus? Rhombus is a parallelogram, but it has all the sides equal. Another thing is its diagonals bisect each other at 90 degree. Means they are right bisector. When I say square and rhombus, when I say this is a square, their diagonals bisect at 90 degree. So therefore, these diagonals are right bisector. For example, if I take this ABCD, right? AC is right bisector of BD and BD is right bisector of AC. Understood, students? Yes or no? Yes, sir. Right. So have you understood? So we have angle bisector, we have line bisector, we have right bisector. So difference between all three. Yes, sir. Right. So we have done the type of lines, that is, what are the type of line? Parallel lines, Intersecting. intersecting lines, and bisector. Okay? So you should know the difference between all these three things. Basically, what happens? Sometimes what happens in the question, the statement is given. The right bisector drawn to the line cuts the line. Okay? So you should able to make out from that statement what is the question exactly. If you don't know the meaning of these words, that will make the understanding of the question difficult for you people. Yes, sir. Right? Next thing is angles. Now tell me, what is an angle? What is an angle?
राइट, बताइए जरा बच्चों। Two rays which have a common vertex. ओके, एनी अदर डेफिनेशन? व्हेन आई से एंगल, दो रेज होती हैं जो एक ना उनके बीच का जो एंगल होता है, मतलब वो कौन से एंगल पर वो बन रही है रेज। नाउ जैसे हम अपनी एल्बो की वो ले लें। यस, नाउ आई हैव ड्रॉन टू रेज, राइट? व्हाई रेज, व्हाई नॉट लाइंस? एनीवन टेल? सर क्योंकि जो जो लाइन होती है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, और जो रेज होती है उसका एक एंड पॉइंट होता है, और जो एंगल। Because this is the terminal point, right? This is known यस as terminal point of the angle, सर। right? And this is known as angle, right? यस सर। Is this clear? यस सर। Now we have different pair of angles, right? We'll talk about different pair of angles. If I say first, what is vertically opposite angles? Is this clear? कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और द ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। सर लाइक अगर हम Say इस vertically opposite angle. लाइन इन If you have two rays or two lines intersecting each other, right? The Yes. point where they intersect. What is the name of this angle? Vertically opposite angle. opposite angle. What is the meaning of vertical? What is the meaning of vertical? Yes, who will tell me? वर्टिकल एक दूसरे के एक दूसरे के opposite? Students, horizontal or vertical? Do you know what is the meaning of this? See, x-axis is horizontal, y-axis is vertical. Is it clear? When I say standing, this is vertical. Lying down, this is ऐसे तो आपने ये दोनों एंगल से लाइक इक्वल बताया, और हमारी जो राइट हैंड साइड वाला और लेफ्ट हैंड साइड वाला ये फिर वर्टिकल हो गए, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। हाँ, ये भी vertical है। Basically क्या है? तो लाइक सीधा नहीं होता। Yeah, your point is correct कि वो horizontal बन रहे हैं, right? But they are also vertically opposite angles, right? So vertically opposite means they are vertically opposite to each other. Is this clear? Yes, sir. Right? Now the face of this angle is this side and this is this. So they are oppositely faced. Yes, sir. That's why they are known as vertically opposite angles. Or they are equal. They are equal. Yes, sir. Can we prove this? These are equal. How we can prove? See, let this angle is, give it name A. This is B. And let's say this angle is C. Is this clear? E और जो Q है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, और जो Q है और इसके साथ क्यों तो है ही नहीं बेटा, ये A है। अच्छा, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, क्यों लग रहा है? This is A, this is B, this is C. So A plus C, that is also a linear pair. Yes, sir. B plus C is also a linear pair. Yes, sir. So both will be equal. Yes, sir. Means A plus C will be equal to B plus C. Yes, sir. So if you cut down C, then you are left with A and C. A and C equal. Is it okay? Yes, sir. So these are vertically opposite angle. Another thing which we have used in this proof is the linear pair. Linear pairs. So what is the meaning of linear pair? Sir, angles that any pair of angles that have the sum of 180 and they lie on the straight line. Yes. The basically you should put it other way around. Angles lying on a straight lines makes up 180 degree. Yes, sir. Right? Because this is a straight line, right? Yes, sir. All angle on this is a straight angle also. This is also known as straight angle, Yes, sir. right? So the sum of, or this total angle is 180 degree. Yes, Now, if you divide this in number of angles, right? This you
divide this into different angles. The sum total remains the 180. right. Acha, now tell me one thing. This is A, this is B, this is C. When we say all A, B, C are linear pair, yes or no? Yes. Right. So don't think it is pair. Pair means group of two. But here it can be more than that also. When we say that a linear pair has a sum of all angles is equal to 180. Right? So Yes. linear pair is clear. Yes, sir. Now, then the next is corresponding angles. Corresponding angles. Now, before understanding corresponding angle, one more thing I would like to clarify. That is a transversal. What is a transversal? Who will tell me? Please raise your hand. No, ऐसे नहीं बच्चे, नहीं ऐसे नहीं. No भिंडी बाजार. Yes, those who knows, please raise your hand. हाँ जी, आपने हैंड रेज किया हुआ सेंटर में बी सेक्शन में जो स्टूडेंट है. प्लीज टेल. या प्लीज स्टैंड अप बेटा, प्लीज स्टैंड अप. बिल्कुल सेंटर में, क्लास के बिल्कुल सेंटर में जो स्टूडेंट है. हाँ जी, इनके पीछे वाला, इनके पीछे जो स्टूडेंट है. Transversal line. Transversal. हाँ जी, बोलिए बेटा. Sir, all angles are equal. बैठ जाओ. ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ट्रांसवर्सल, है ना. अच्छा, पहले तो मुझे बताओ, ट्रांसवर्सल लाइन होती है, एंगल होता है? यस, यू ओनली. हाँ, की कहते ट्रांसवर्सल लाइन होती है, एंगल होता है. व्हाट इज ट्रांसवर्सल? इससे लाइन और एंगल और एन एंगल. सर line. बैठ जाए. एनीवन फ्रॉम सेक्शन ए, कौन बताएगा बेटा? यस, प्लीज स्टैंड अप एंड टेल मी. Sir, a line which intersect multiple lines. सेक्शन ए से नहीं हो ना बेटा, आप बी से हो. आई हैव आस्क्ड फ्रॉम सेक्शन ए. हाँ जी बेटा, बोलिए, प्लीज कैरी ऑन. Sir, a line which passes from two parallel lines. Is it necessary it should passes from a parallel line? If it is not parallel, then it is not a transversal. हाँ जी. Non-parallel too. Yeah, it can be non-parallel also, right? Any line, see, we have two lines. They may or may not be parallel. This line, this L, this M, and let's say this is P. So, the line intersecting two given lines is a transversal. Is this clear? The line L and M may be parallel, may not be parallel, right? Any line passing through two given lines is known as transversal. तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? Transversal. So you should know the meaning of transversal, because in the question it is given a transversal passes through the line this and making supplementary angles, right? Complementary angles. This is clear? So you Yes. should know the meaning of the statements, right? When Yes. we say, okay, this is clear, ji students? Now, when I was explaining corresponding angle, what is the corresponding angles? Now, Equal. just a moment. Now, this angle and this angle, they are known as corresponding angle. Means the angle lying on the same side of the transversal, right? Yes, sir. They are known as corresponding angles. Is this clear? Does corresponding angles always equal? Yes, sir. Yes. 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 Okay, let me explain one thing. Let's say these two lines, they are not parallel. These are not parallel. This is a transversal. Is this a corresponding angle or not? Tell me, are they corresponding angle or not? No, sir. How many says yes, they are corresponding?
They are corresponding. They may or may not be equal. They are corresponding angles, students. They will be equal if and only the lines L and M are parallel. Is this clear? Yes. No confusion, right? So they are corresponding angles. Is this clear? Yes, sir. Right? They will be only equal if the line L and M are parallel. Is it clear? Yes, sir. Right. So next thing we have, supplementary and complementary, you know. Yes, sir. What is supplementary? The angle which is equal to 180. Sum of two angles is equal. Which is The equal to supplementary angles is a pair of angles which sums to 180. Is this clear? yeah. Now tell me, are the linear pair are supplementary? Linear pair is supplementary or not? Yes. Other way around, supplementary angles are makes linear pair. How many says yes? Please raise your hand. So repeat your question. Yeah. Does supplementary angle also makes the linear pair? Yes, sir. How many says yes? Please raise your hand. Okay, I'll take an example. I'll take an example of a parallelogram. Angle A and B are supplementary. Angle A and B are supplementary. Parallelogram की property होती है ये opposite angle are supplementary. Yes or no? Yes. Yes. Are they linear pair? Are they form linear pair? Yes, sir. Yes, sir. How many says yes? Is it linear pair? No. But by the definition of linear pair, they should be on the same line and they should have the same terminal point, all angles. Is this clear? So linear pair are supplementary, but supplementary are may or may not be linear. Is this clear? Yes or no? What is complementary angle, students? Angles whose sum is 90 degree. Is this clear? Those who makes up the sum 90 degree. You right? So last but not the least and very important one is alternate angles. Alternate angles. Right? What is alternate angles? Let's say we take two parallel lines L and M and a transversal cuts them. Is this clear? Yes. Now angles on the opposite side of this transversal, right? Opposite side of the transversal and in opposite direction also. See, this direction is right. So what is the name given to these two angles? Alternative angle. Alternate angles. Okay. Alternate angles are also of two types. What are those? Interior and exterior. Alternate interior and exterior. These are exterior or interior? Exterior. Now, if you take these two angles, they are Interior. interior. These two angles, this one and this one. One, Yes, sir. 1 and 2 are interior or exterior alternate angles. They are linear. है जी? Sorry, interior. लीनियर पेयर कौन बोल रहा था? अरे बेटा, आई थिंक आप लोगों को लीनियर पेयर को लेके बड़ा कंफ्यूजन है. लीनियर पेयर में कोई डाउट्स है बच्चे? सर नो, पहले मुझे लगा कि जो 1 है उसके साथ वाला एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है वो कुछ. ये है. Yes. Say yes. So these are alternate interior angles. Brother. You understand these or हाँ जी बोलिए क्या बोल रहे हैं? Yes, tell me what you want to say.
Anything else? सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है. Screen visible नहीं है. Section A screen is visible or not? Make the diagram in center. रेड लाइन आ रही है. बोलो. हाँ जी. सर आप अपना सेंटर में लिख दो, सेंटर में विजिबल है सर कुछ. से कैसे हो सकता है? सर हमारी ना साइड पर इमेज आ रही है, तो आप ना वो कह रहे हैं कि सेंटर में वो बना दो डायग्राम. वो तो ठीक है, वो तो मैं कर देता हूँ बेटा. नाउ इट इज क्लियर. इज दिस क्लियर? Yes, yes. Now these two lines are parallel lines, right? And this is a transversal. I am drawing some angle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Please just draw this figure. Please students listen to me. Assignment बाद में शेयर कर लेना बच्चों. बाद में देख लेना बेटा. मैथ की असाइनमेंट है. तो एक मिनट रुक जाओ बेटे, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्लीज हैव अ लुक एट दैट. नाउ आई हैव ड्रॉन ए फिगर. I have drawn a figure. Just have a look at the figure. Is this figure clear? Now please find out the different type of angles. कौन-कौन से find out करने हैं? Linear pair, supplementary, Complementary. Alternate. Alternate. Co-inferior, corresponding. please find these angles. Right? ओके सर. Please do this. Yes, students, done. चलिए, विराज from section A, please stand up. हाँ सर. विराज is there. आ जा बेटा. अच्छा, विराज तो पहले भी आया था. Yes. Please tell me one pair of complementary angles. Complementary. हाँ जी, complementary. Sit down. मनस्वी. Sit down बेटा, sit down विराज, please बैठ जाइए. मनस्वी from section A. Yes बेटा, please tell me one pair of complementary angles. Who will tell me the one pair of complementary angle? Please raise your hand.
हाँ जी बताइए, आप बताइए बेटा, जो गर्ल स्टूडेंट ने सेक्शन ए में हैंड रेज किया है। Sir, there is no pair of complementary. वेरी गुड बच्चों, देयर इज नो पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? सम इज 90 डिग्री, so there is no pairs who makes up 90 degree, Yes, sir. right? Manasvi is there. हाँ जी, आप इधर आ जाओ जरा कैमरे में बेटा, come this side. Tell me two pair of vertically opposite angles. Sir, Two pair of vertically opposite angles. No teamwork, please do yourself. हाँ जी, one और sit down, go back. Navleen from section A. Navleen. Navleen is there. हाँ जी बच्चे, tell me two pair of vertically opposite angles. Good morning. हाँ जी, please tell me. Angle 1, angle हाँ जी. 3, And other. angle 4, हाँ जी. angle 2. Angle 2. Please sit down. Very good. Next is Arun from section B. Yes. Tell me two pair of corresponding angles. Corresponding angle. Yeah. No one else will tell him. हाँ जी बोलिए बच्चे. Sit down. Sit down. Sit down. Dave. Dave from section B. Where is Dave? हाँ जी बच्चे. Tell me sir. two pair of linear pairs. Sir, is linear pair का sir 8 and 7. 8 and 7. Linear pair है बच्चे. वाह, मुझे तो आज ही पता चला इसको भी लीनियर पेयर बोलते हैं. Sir, लीनियर पेयर कैसे हैं ये मुझे तो ये बताओ कि 7 और 8 लीनियर पेयर कैसे हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर पेयर? कम इन द स्क्रीन. इधर आ जाओ जरा पहले आप कैमरे में बेटा. हाउ दे आर लीनियर पेयर? हाँ जी sir. हाँ जी, 7 and 8 आर लीनियर पेयर. Sir, नहीं. So why you are saying them? No. कौन कौन से लीनियर पेयर है? प्लीज टेल मी. सिट डाउन. Okay. मैं एक बार आप सबको सारे एंगल्स बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना. When I say linear pair, see, please note down 1 4 1 2 2 3 3 4. Is this clear? Come in this 5 7 5 8 8 6 7. Are the 8 pair of linear pairs. Is it clear? Is this clear or not? हाँ जी बेटा, you want to say something? Section B. sir, yes. Tell me what you want to say. Sir, I want to tell the answers. अच्छा, चलिए फिर आप खड़े हो जाइए. Please stand up. Yes, tell me
two pairs of interior alternate angles. Alternate angles 3 and 5, हाँ जी. 2 and 7, हाँ. 4 and 8. Just a moment. देखो यही होता है ना. You were so excited. You have not heard the question properly. नहीं 4 and 5. क्वेश्चन ही नहीं सुना ना आपने. प्रॉब्लम ये है बच्चे. What was my question? Yes. What was my question? Alternate angles. Alternate interior angles. Okay. ठीक है ना. एग्जाम में भी यही होता है बच्चे. क्वेश्चन कुछ होता है, हम वो लिख के आते हैं जो हमें आता है. So 3 and 5 and 2 and 7. 3, 5, 2 and 7. Very good. Please sit down. हाँ जी. So second is supplementary angle. Supplementary means those whose are some 180 degree. All the linear pair which I have told you are Supplementary angles. all linear pairs are supplementary. Right? ठीक है. When I say complementary, there is no complementary. Right? Vertically opposite 2, 4, 1, 3, 7, 8, 5, 6. 5, 6. Yes. Alternate angles. Alternate when I say interior. When I say interior, 2 and 7, 3 and 5. Yes. When I say exterior, 4, 8, 1, 6. 4 and 8, And 1 and 6. Is this clear? What Yeah. next? Corresponding 1, 5, 2, 8, 3, 6. 6, 4, 7. Is this clear? Yes. Any other question left? No. Right. So these are the pair of angles. Now students, open the assignment. Question number 1. In the figure, the value of y is. You have to find the value of y. Please find the value of y. हाँ जी. So done. Let others also do it. हाँ जी. How many of you have done? So done. Only 3, 4 students in section B. सेक्शन ए से कौन करके बताएगा? एक बच्ची को जोड़ के. बस ये जो पहले फ्रंट, पीछे से कोई आए जरा. सेक्शन ए, anyone from the back benchers? Anyone from the back bencher, ma'am, please send anyone from the back. Request to the teacher present in section A. Any student from the last 2 rows. अच्छा विराज आप आ रहे हो? आ जाओ. Yes, my first question is, just listen my question carefully before answering the question. Which concept we will apply in this question? आवाज नहीं आ रही आपकी. माइक जरा अपने पास ले लो. Vertically opposite angles. Yeah, first concept we'll apply vertically opposite angle, right? Then Sir, then 3x plus 2x plus x is equal to 1. then which concept I am talking about? Linear pair. Linear pair. So please sit down. Students, here we will apply 2 concepts. Hands down. Right? We'll apply 2 concepts. Which are those concepts? See, we have to find the value of x. Now, how we can find out the value of x? These 3 angles. I am drawing these 3 angles. They are forming linear pair. Yes or no? Yes. This is in the form of x. This is also x, but this is y. So how to change this into x? We have been given this angle as x. So x and y, they are
vertically opposite angles. So this y will be equal to X x by vertically opposite angles. vertically opposite angle. So therefore, this y also become x. Yes. So now the linear pair will become 3x plus x plus Plus 2x is equal to 180. 3x plus x plus 2x will be equal to. So the second concept we have used is 6x linear is equal pair. to 180. So you have to mention बच्चों कि which concept you are using here, right? As I have written here, vertically opposite angle, here linear pair. So how much this makes up? 6x is Is equal equal to 180. X is equal to 180 over 6. X is equal to 30. x is equal to 30 degree. Now he has asked x. So he has asked y rather. X and y are equal. Therefore, y equal to x equal to 30 degrees. So x and y both are same. And Yes. will be 30 degree. Is this clear, bachcho? Any doubt in this? No. Right. So we move on to the next question. Question number 2. In the figure, the value of x is. You have to find the value of x here. But no teamwork. Section B, these two girl students on the second bench. Keep on talking, discussing, do yourself, do separately. Sir said do yourself, not this. अपना अपना कीजिए बच्चे आप. नो टीम वर्क प्लीज. थोड़ा गैप लेके बैठिए जरा. Yes. हाँ जी. Who has done this? Sir. Yes, stand up and tell me what concept you have applied in this question. Yes, tell me which concept you have applied. Sir, first we have applied the concept of vertically opposite angle. Right. After that, 3x plus 10x plus x plus 90 degrees is equal to 180 linear pair. Right. After that, 4x plus 100 is equal to 180. Right. Then 4x is equal to 180 minus 100. 4x is equal to 80. X is equal to 80 over 4. Then cutting, then x is equal to 20. राइट बच्चे. लेकिन काफी लोगों को क्लियर नहीं हुआ. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा. देखिए आपको क्या गिवन है यहाँ पे. दिस एंगल इज गिवन. थोड़ा सा डायग्राम मैं अगेन ड्रॉ करता हूँ. ये देखिए बच्चों ये एंगल 90 है. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर सेकंड क्वेश्चन हम खुद कर लेंगे, आप थर्ड करवा दो. हाँ जी. सर सेकंड क्वेश्चन हम खुद कर लेंगे, आप थर्ड करवा दो. थर्ड मैं नेक्स्ट क्लास का में कराऊंगा बेटा. साइंस सर इज देयर सो ही विल टेक योर साइंस क्लास. Okay, sir. राइट. सो Yes, थैंक यू वेरी sir. मच. Thank you, sir. तो वेल डियर स्टूडेंट्स, बेटे हमारा लिंक टूट गया था. साइलेंस. लिंक टूटने की वजह से मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा. मैं एक बार फिर से जल्दी से बताता हूँ. ध्यान से. शाबाश. वंस अगेन बेटे. बच्चा बैलेंस्ड फोर्स, इसके दो चीजें हैं. बैलेंस्ड फोर्स आपको ना एक्चुअली दोनों में से एक केस पता है, इसलिए आप गड़बड़ कर देते हो. अब मैं समझाता हूं. मैं आपसे पूछूं एक बॉडी रेस्ट पर है, रेस्ट पे है बॉडी, तो आपसे पूछूं मैं इसकी वेलोसिटी कितनी है. आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, वेलोसिटी 0 हुई ना जब रेस्ट पर है.
फिर मैंने बोला कि उसके ऊपर मैंने काफी सारे फोर्सेस लगा दिए, F1 फोर्स, F2 फोर्स और F3 फोर्स, जितने मर्जी लगा दो, F4 फोर्स। लेकिन कंडीशन ये है कि उन फोर्सेस को लगाने के बाद भी जब मैंने वेलोसिटी देखी तो वो जीरो ही निकली, Zero. इवन आफ्टर। यानी Equal force is applied from all the sides. यानी एट रेस्ट ही है बॉडी। अगर ये एट रेस्ट भी है फोर्सेस लगने के बाद, तो पहले भी सेम वेलोसिटी थी, अब भी सेम वेलोसिटी, जीरो की जीरो, रेस्ट पर रेस्ट है। देन यू कैन से F1, F2, F3, F4, इन सारे फोर्सेस का जो सेट है वो बैलेंस्ड फोर्सेस का सेट है, बैलेंस फोर्स। ये आपको केस नंबर 1 तो सभी बच्चों को पता है। सर सेकंड में आप गलती करते हो बेटे, वो भी पता होना चाहिए। सर केस 2 में ध्यान से सुनो, अगर कोई बॉडी इधर को जा रही है और उसकी वेलोसिटी है v वेलोसिटी है, ठीक है, और मैंने उसके ऊपर फोर्सेस लगा दिए। ध्यान से देखना, एक फोर्स ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, एफ ए लगा दिया, एफ बी फोर्स लगा दिया, एफ सी फोर्स लगा दिया, एफ डी फोर्स लगा दिया। और मैंने बाद में आपसे पूछा कितनी वेलोसिटी होगी, आपने बोला सर v डैश होगी। लेकिन आपको सच सच बताएं, ये जो v डैश है पहले वाली वेलोसिटी के बराबर ही है। सेम वेलोसिटी कब रहेगी, जब लगने वाले ग्रीन कलर के सारे फोर्सेस ने एक दूसरे को नलिफाई कर दिया। जब लगने वाले ग्रीन सारे फोर्सेस नलिफाई हो जाएंगे, बाद में भी बॉडी की वही वेलोसिटी रहे जो पहले वाली थी, तब हम कहेंगे ये सारे फोर्सेस ने एफ ए, एफ बी, एफ सी और एफ डी सभी ने बैलेंस्ड सेट ऑफ फोर्स बनाया है। ओके। और Yes, एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहो, तो ऐसे लिखोगे, फॉर बैलेंस्ड सेट ऑफ फोर्सेस एफ नेट इज इक्वल टू, ये देखो जितने भी फोर्सेस लगे, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी plus FD. एंड साथ में ये भी लिखना पड़ेगा, एंड एफ नेट इज इक्वल टू 0। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी का वेक्टर सम कर दिया जाए। वेक्टर सम का मतलब ऊपर एरो। हाँ जी बेटे, Sir, F net मतलब resulted force. हाँ रिजल्टेंट फोर्स, नेट और रिजल्टेंट एक ही बात, तो वो 0 आना चाहिए। अगर कोई मलक से बच्चा पूछे सर ऐसी चीज हम इधर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, बैलेंस्ड सेट ऑफ फोर्सेस है ही तब जब F1, F2 प्लस F3 और इसमें हमने एक और लगाया था F4, सभी का टोटल हमने कर दिया F रिजल्टेंट, और ऊपर से F रिजल्टेंट जो है वो साथ में लिखना पड़ेगा, F रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा लिख सके तो ये बैलेंस्ड सेट ऑफ फोर्सेस है। कोई बच्चा बोले सर ये जो लास्ट में आप इक्वल टू 0 लिखते हैं, अगर आपने इस इक्वल टू को अनइक्वल में कन्वर्ट कर दिया तो क्या होएगा, Unbalanced force. शाबाश, तब ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस होएगा। दूसरे शब्दों में मीनिंग ये है कि ये बॉडी जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पे नहीं रह पाएगी, उसको हिलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, और इधर मैं कहूंगा कि उसकी वेलोसिटी सेम नहीं रह पाएगी, चेंज हो जाएगी। अनबैलेंस्ड फोर्सेस में वेलोसिटी जरूर चेंज होती है बॉडी, और बैलेंस्ड सेट ऑफ फोर्सेस में वेलोसिटी जितनी थी उतनी ही रहेगी, जितनी थी फोर्सेस लगने से पहले उतनी ही रहेगी फोर्सेस लगने के बाद। जिन बच्चों को ये सारी बात क्लियर हो गई है, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज गिव मी द इंडिकेशन बाय रेजिंग राइट हैंड। बेटा मैं ऐसे तो जाना ही नहीं, ये पढ़ा पेन, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। आपको अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड, समझ आ गया तो राइट हैंड, एक हाथ खड़ा करना ही है। 9th ए से पूछ रहा हूं पर्टिकुलरली, 9th ए, अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड, समझ आ गया तो राइट। शाबाश डाउन बेटे, 9th ए ना हमारी थोड़ा सा लेट डाउन, शाबाश सभी को समझ आ गया। 9th ए ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा था, एक बार मैं फास्ट बता दूं,
बॉडी शुरू में रेस्ट पे थी, उसकी वेलोसिटी u0, काफी सारे फोर्सेस लगाए हमने, F1 F2 F3 फोर्सेस लगाए, उसके बाद भी बॉडी अभी रेस्ट पर ही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी अभी भी 0 है। तब जाकर इनको बैलेंस सेट ऑफ फोर्सेस बोला। और इधर टीचर ने क्या बताया, एक बॉडी रेस्ट पे नहीं है बल्कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v से चलती जा रही है, उसके बाद फोर्सेस लगाए Fa Fb Fcd, और उस फोर्सेस लगने के बावजूद फाइनल वेलोसिटी उतनी ही रही जितनी पहले वाली थी। अब भी हम बैलेंस्ड सेट ऑफ फोर्सेस बोलेंगे। कोई बच्चा कहता है सर इसकी एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल। मान लीजिए बहुत स्ट्रॉन्ग रॉकेट, ये मेरे हाथ में मार्कर पकड़ा हुआ है, ये आप रॉकेट समझ सकते हो। ऐसे रॉकेट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, रॉकेट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। और इसको एक चिड़िया इधर से मारती है, एक चिड़िया इधर से पुश मारती है, एक चिड़िया इधर से पुश मारती है, 10-12 चिड़िया पुश मारती हैं। तो हम क्या देखते हैं, सुन तो लो बेटे, हम क्या देखते हैं, चिड़ियों ने जब इसके ऊपर अटैक करा के, तब भी रॉकेट सीधा ही जा रहा है और उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसका मतलब जितनी भी स्पैरोज ने आकर इसको पुश करा, फोर्सेस लगाए, उन सारे फोर्सेस का कोई असर ही नहीं हुआ। ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, ना ही ये तेज या स्लो है, ये तो वैसे ही जाता रहा। इसका मतलब है जब कोई बॉडी मोशन में हो तब भी बैलेंस सेट ऑफ फोर्सेस लग सकता है। जितनी भी स्पैरोज ने फोर्स लगाया था उनका नेट इफेक्ट 0 आया, बैलेंस सेट ऑफ फोर्सेस। आ गया समझ बेटे? हाँ जी, हाँ जी। सर ये फोर्स अनबैलेंस नहीं हुआ क्योंकि जो एरोप्लेन है उसने ज्यादा फोर्स लगाया था और जो स्पैरोज है उसने कम। ना 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 बेटे, उनका कंपैरिजन नहीं करना आपने। आपने ये देखना है बेटे, ये नहीं देखना आपने कि रॉकेट ने कौन सा फोर्स लगाया या ना बाद में कौन सा ना। रॉकेट तो एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्सेस लगा रही हैं स्पैरोज, जो उस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही होती हैं, ये वाली स्पैरोज वाली, उनको ही कंबाइन करना है आपस में। रॉकेट के अपने फोर्स को नहीं लेना। समझ गया कि नहीं समझ गए? यस। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। इस तरह से आपके दो क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएंगे। तीसरा बोलता है, ध्यान से सुनना बेटे, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 ना हो, किसी बॉडी के ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और वो 0 ना हो, तो क्या क्या चीजें मुमकिन है? शाबाश। पहली बात, कोई बच्चा बताएगा कि क्या मोशन होएगा इसमें कि नहीं होएगा? बोलो। एक बॉडी है, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, वो 0 नहीं है, क्या इसमें मोशन होएगा या नहीं होएगा? बताओ। यस। एक बच्चा कहता है यस, एक बच्चा कहता है नहीं। ये तो कंफ्यूज हो गया आप। ध्यान से सुनो बेटे, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है तो मोशन, और बॉडी रेस्टेड थी, शुरू में बॉडी रेस्टेड थी, तो एक्सटर्नल फोर्स लगने के बावजूद ये बॉडी मोशन में आ भी सकती है, नहीं भी। दोनों आंसर हैं इसके। अब बच्चा बोलेगा कैसे? ध्यान से सुनो, जो मैंने ग्रीन कलर का फोर्स लगाया वो एक्सटर्नल फोर्स, क्या इसकी बॉडी की येलो सरफेस के ऊपर जो फ्रिक्शनल ग्रिप फोर्स है उसको तोड़ने में कामयाब हो जाता है या नहीं हो जाता है? अगर एक्सटर्नल फोर्स कामयाब हो जाए, इस ग्रीन कलर की बॉडी की येलो सरफेस के ऊपर जो ग्रिप बनी हुई है यहां पर, ड्यू टू फ्रिक्शन, ग्रिप ड्यू टू फ्रिक्शन, अगर उस फ्रिक्शन को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, इतनी इसकी सफिशिएंट वैल्यू है, तब मोशन होगा। अगर ग्रिप टूट जाए तो ठीक है, ग्रिप के ऊपर ब्रेक ना टूट जाए, फ्रिक्शनल ग्रिप, अगर ये फ्रिक्शनल ग्रिप को नहीं तोड़ पाता तो क्या होगा? नो मोशन। अगर ग्रिप एज इट इज कायम रहती है। सर इसकी एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जब हम पैडलिंग करते हैं साइकिल पर, अगर हमारी पैडलिंग लाइक जो टायर्स की फ्रिक्शनल फोर्स होती है रोड के साथ, अगर हमारी पैडलिंग उसकी फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है तो वो हम साइकिल मूव कर पाते हैं, अगर उससे कम है तो साइकिल मूव नहीं होगी।
बेटे इसमें हम ना साइकिल वाली एग्जांपल नहीं लेंगे, जैसे कि आप बोल रहे हो साइकिल वाली नहीं लेंगे हम। आप इसको ये कह सकते हो सर, एक अलमारी है, उसको अलमारी को अगर छोटा बच्चा पुश करे तो वो पुश नहीं होती, ठीक है, खड़ी रहेगी। तो आप कह सकते हो इसमें मोशन नहीं हो लगेगा, मोशन नहीं होएगा, हालांकि एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो है। लेकिन अगर इसी अलमारी को WWF वाला कोई बिग रसलर मूव करेगा तो अडल्ट पर्सन मूव करेंगे, आपके पापा मूव करेंगे तो ये जरूर मूव हो जाएगी। इसका मतलब है एक्सटर्नल फोर्स सफिशिएंट है, उस वक्त मोशन हो गया। आगे समझ? और साइकिल वाली एग्जांपल लेनी, उसको आप तब ले सकते हो क्योंकि उसमें रोलिंग फ्रिक्शन आ जाता है, उसमें आप तब लगा सकते हो अगर आप साथ में ये कंडीशन बोलो सर ऐसे ब्रेकें दबा दी हैं साइकिल की दोनों, टायर नहीं घूमने देने, अब मैं अगर पुश करूं तब आप उसमें एग्जांपल दे सकते हो अपने वाले। और मतलब अगर बैलेंस फोर्स है तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, अगर अनबैलेंस्ड है तो एक्सेलरेशन। नो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं मैंने बोला। ऐसा नहीं होगा? मैंने बोला था बैलेंस्ड फोर्सेस में, अगर एक सेंटेंस में आंसर चाहते हो तो बैलेंस्ड फोर्स लगने पर या तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। ओके। अगर कोई बच्चा बोले सर आपका मतलब ये हुआ अनबैलेंस्ड फोर्सेस तभी हैं जब बॉडी की वेलोसिटी वेरिएबल हो जाए, मैं कहूंगा यस वेरिएबल हो जाए। सर इसका एक सेंटेंस में ऐसे भी आ सकता है, अनबैलेंस में नो चेंज एंड सॉरी अनबैलेंस में चेंज एंड बैलेंस में नो चेंज। लेकिन वो चेंज साथ में बोलना पड़ेगा वेलोसिटी में। यस सर। बेटा बिल्कुल सही, ये बच्चा बहुत अच्छा बोला सर। मैं सिंपल, इस बच्चे ने बताया ये 9th A का बच्चा है कोई, शक्ल तो दिख नहीं रही, वो कहता है सर ऐसे कह सकते हैं कि अगर बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ गया तो वो अनबैलेंस फोर्स है, अगर बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं आया इवन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस तो वो बैलेंस फोर्स है। ये बिल्कुल सही, ऐसे बोल, ठीक है बेटे। अच्छा एक चीज और, एक्सटर्नल फोर्स लगने से कुछ और हो सकता है। एक बच्चा बोलेगा एक पॉसिबिलिटी और है बेटे, आपने बताया नहीं, एक्सटर्नल फोर्स लगाने से मान लो मोशन की टर्म्स में हमने नहीं पढ़ना, हम इसमें कुछ और हो सकता है एक्सटर्नल फोर्स लगने से। रेस्ट में जो मोशन में ऑब्जेक्ट हम रेस्ट में कर सकते हैं। शाबाश, कोई बच्चा आंसर दे। मैं मोशन की टर्म में बात ही नहीं करनी, एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो मोशन वाले वर्ड को हटाकर कुछ और हो सकता है। बेटे आपको यस, देखो मान लीजिए मेरे पास ये प्लास्टिक की खाली बोतल है और मैं इसको ऐसे फिस्ट से दबाऊं, क्या ये दब नहीं जाएगी, इसकी शेप नहीं चेंज हो जाएगी? यस। तो एक्सटर्नल फोर्स लगने से बॉडीज शेप। सर एक डाउट है। एक मिनट, हाँ बोलो बेटे। सर जैसे आपने एग्जांपल दिए, एक अगर बॉक्स को एक छोटा बच्चा नहीं, अलमारी को एक छोटा बच्चा पुश करे तो वो रेस्ट पे रहती है, वो मूव नहीं होती, तो वो तो अनबैलेंस फोर्स हुआ, तो उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया, वो तो पहले भी रेस्ट में थी अभी भी रेस्ट में ही है। बेटे मैं तो अभी, अब बैलेंस और अनबैलेंस की तो पिछला टॉपिक था ना, मैं तो ये बोल रहा हूं अगर एक्सटर्नल फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो है, जब वो टीचर ने एक्सटर्नल फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो हो गया तो ये एकदम से अनबैलेंस तो है ही है। ओके सर। तो एक्सटर्नल फोर्स को जब टीचर बोलता है, उसको टीचर ने क्या बोला था, इसी को तो मैंने नेट फोर्स बोला था। सर पर आपने तो बोला अगर बैलेंस फोर्स लगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, अगर अनबैलेंस लगा तो उसमें कोई चेंज होगा, तो किस किस चीज में चेंज, ये भी तो देखो। मैंने बोला था कि जब कोई बॉडी, आपने वेलोसिटी की टर्म्स में बोलना है, जब कोई बॉडी का वेलोसिटी उतना ही रहे जितना था, उतना ही, तो आप कहोगे कि सर बैलेंस सेट ऑफ फोर्सेस है। तो अगर ये एक चीज देखो यहां पर, अगर मैं बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, ध्यान से सुनना मेरी बात, बॉडी के ऊपर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इधर से फ्रिक्शनल फोर्स लगाया, बॉडी बिल्कुल हिल नहीं रही, और इसका मतलब हिल नहीं रही तो उसमें मोशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स एक दूसरे को नलीफाई कर गए, तो ये दोनों का बैलेंस्ड सेट ऑफ फोर्स हो गया।
अगर यहां पर ये मोशन हो गया, अगर यहां पर ये मोशन हो गया, ठीक है, तो जो ये लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है और एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक दूसरे को नलीफाई नहीं कर सके, तो यहां पर अनबैलेंस्ड सेट ऑफ फोर्सेस है। आगे समझ? यस सर। अब इधर देखो, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इसकी बॉडी की शेप चेंज होगी। देखो टीचर ने क्या लिखा है, बॉडीज शेप में चेंज, में चेंज बोला है, में हो भी चेंज। सकती है, हो भी नहीं भी सकती। हाँ, तो अब एक बात बताओ, कब नहीं चेंज होगी? देखो अगर देखो, एक ध्यान से सुनो, मेरे पास एक प्लास्टिक की बोतल है, बड़े बंदे के पास, तो मैंने इसको अपने हाथ से ऐसे पकड़ा, तो जब मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, स्क्वीज करूंगा, तो इसकी शेप चेंज होगी। यानी कि उस वक्त मेरे द्वारा लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स और बॉटल के अंदर से इंटरनल फोर्स आपस में मुकाबला नहीं कर पाए, एक्सटर्नल फोर्स जीत गया। अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर कोई प्लास्टिक की बोतल, अगर कोई प्लास्टिक की बोतल को 1 ईयर का किड छोटा सा किड अभी जिसको चलना ही आता है, उसने हाथ से पकड़ा हुआ है और वो दबाने की कोशिश करता है, बॉटल की शेप नहीं चेंज हो रही। आगे Yes. कुछ, तो इसीलिए टीचर ने मे लिखा। मे का मतलब यस और नो दोनों पॉसिबल है। टीचर ने मे नहीं लिखा, मे लिखा, कैन नहीं लिखा टीचर ने, कैन। ओके, कैन में तो फिर पक्की बात हो जाएगी, चेंज करता है। कैन नहीं लिखना, मे लिखो। ओके, इंग्लिश Yes, sir. कितनी क्लैरिटी तो होनी चाहिए बेटे आपको। अच्छा, अब इसके ऊपर है एक बात और, कहता Sir, excuse me, sir. यस Sir, time is over. टाइम इज ओवर। या देखो आपका ना बीच में गड़बड़ हो जाता है कनेक्शन की वजह से। टाइम इज रियली 2-3 मिनट तो अभी बचे हैं बेटे मेरा ख्याल। एक न्यूटन का फर्स्ट ला कर लेते हैं, चलो लास्ट, बस लास्ट लास्ट चीज कर लेते हैं। सिर्फ लास्ट चीज बस, मेरे को 5 मिनट दे दो बस। इनर्शिया प्रॉपर्टी को ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। First law. हाँ, इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। 3 लॉ होते हैं। Inertia. हाँ, इसमें देखो बेटे एक बात बताऊं आपको मैं, ये इंग्लिश के वर्ड इनर्ट से लिया गया। इनर्ट, इनर्ट का मीनिंग पता क्या होता है? लेजी, सुस्त। जो चीज जैसी है वैसी रहने की कोशिश करे, उसको जितना मर्जी कह दो। क्लास में होते हैं ना कुछ बच्चे, टीचर की रोज डांट खाते हैं वो, लेकिन वो पढ़ते नहीं है, तो आप उनको बोलते हैं यार इस पे तो टीचर की बात का असर ही नहीं हो रहा है, लेजी है, मेंटली लेजी है, लेजी है, ये इनर्ट है। ना टीचर की डांट का असर हो रहा है, ना टीचर इसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, तो भी असर नहीं हो रहा। अब इसी को हम साइंस में यूज करेंगे। देखो, एक बॉडी रेस्ट पर थी और हमने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया। हम ये चाहते थे कि बॉडी मोशन में आ जाए, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स सफिशिएंट नहीं था, इसलिए ये बॉडी रेस्ट में ही रहने में कामयाब हो गई। पर रेस्ट स्टेट से रेस्ट में रहने में कामयाब होने के लिए इस बॉडी की किसी प्रॉपर्टी ने हेल्प करी होगी। वो प्रॉपर्टी इनर्शिया होती है। जो चीज जैसी थी वैसी ही रही फोर्स लगने के बावजूद। जैसे जो बच्चा क्लास में नालायक था 9th में, वो 10th में भी नालायक ही हो गया, जैसे टीचर चाहे उसको डांट भी रहे हैं। आ गया समझ? लेकिन एक बॉडी मोशन में चल रही है, एक बॉडी मोशन में चल रही है और उसको रोकने की कोशिश करी गई, लेकिन वो फिर भी मोशन में ही रही, तब इसको बोलेंगे हम इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन। और ऊपर वाली प्रॉपर्टी को बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई बच्चा
9th क्लास में ना 8th क्लास में टॉपर था कोई बच्चा, वो बच्चा जब 9th क्लास में रिजल्ट आया तो वो 3rd पोजीशन पे आया। 8th में टॉपर, 9th में 3rd पोजीशन पे आ गया। उस बच्चे ने अपने आप को जोल्ट करा, ये क्या हो गया, मेरे से 2 बच्चे आगे निकल गए। और जब 10th क्लास का रिजल्ट आया वो दोबारा से फर्स्ट बन गया। इसका मतलब जो बच्चा टॉपर था वो टॉपर ही रहा, हालांकि उसके कॉम्पिटिटरों ने उसको पीछे धकेलने की कोशिश करी, फोर्स लगाया। मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगने के बावजूद भी जो बॉडी जैसी मोशन में थी वैसी ही मोशन में रहे, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और एक बात और याद रखनी, अगर टीचर इनर्शिया मोशन बोलता है तो ये बॉडी अपनी दिशा तो चेंज कर सकती है ऊपर नीचे, लेकिन अगर कोई बॉडी जिधर को जा रही है फोर्स लगने के बावजूद डायरेक्शन वही रखे, डायरेक्शन वही रखे, हालांकि उसको चेंज करने की कोशिश करेगी फोर्स लगा के डायरेक्शन को, तो डायरेक्शन सेम रहे, तब आप कहोगे कि ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। तो बच्चा बोलेगा सर इसका मतलब इनर्शिया की बेसिकली 2 नहीं 3 टाइप्स हुई। तो यस, अगर ब्रॉडली देखा जाए तो हम 2 ही बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। लेकिन अगर बिल्कुल डिटेल में जाएं तो इनर्शिया की 3 प्रॉपर्टी होगी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई बच्चा बोलता है सर जितना आपने समझाया है उसको एक सेंटेंस में बोल सकते हो? बिल्कुल, ध्यान से सुनना। Inertia is that property of the body because of which body retains its state even if external forces are applied. या दूसरे शब्दों में, ड्यू टू इनर्शिया बॉडी रिटेन्स इट्स स्टेट, और स्टेट कोई भी हो सकती है, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन। ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया बॉडी रिटेन्स इट्स स्टेट, रिटेन मैंने कायम रखना, इट्स स्टेट अनलेस एंड अनटिल external external force is applied on it. बेटे, unless and until external force is not of that much sufficient level that it changes its state. सर मतलब जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगने के बावजूद बॉडी अपनी स्टेट को कायम रखे, तब तक उसकी किस प्रॉपर्टी ने मदद करी स्टेट को कायम रखने में, वो क्या है। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स का भी एक लेवल है, एक पर्टिकुलर लेवल। अगर एक्सटर्नल फोर्स एक सफिशिएंट लेवल से ज्यादा हो गया, तब वो बॉडी इनर्शिया ज्यादा देर तक रेस्ट नहीं, उसकी हेल्प नहीं कर पाएगी, उसको अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। तो यू कैन से सर अनलेस एंड अनटिल external force reaches to a certain higher level, body will retain its state due to inertia property. I will say yes. ठीक बोला। तो एक्सटर्नल फोर्स हमेशा फेल नहीं होता, कभी कभी ये बॉडी की स्टेट चेंज कर देता है। क्यों? उसके पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है, तब वो मुकाबला नहीं कर पाता, उसको अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ती है। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगा जब शुरू में कम है, तब उसने अपनी स्टेट को कायम रखा, तो थोड़ा सा फोर्स लगने के बावजूद भी उसने अपनी स्टेट को रेस्ट से रेस्ट ही पे ही रखा। उतनी ड्यूरेशन में कौन सी प्रॉपर्टी ने उसकी मदद करी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट ने करी। सर मतलब अगर किसी बॉडी की स्टेट चेंज हो गई तो वो इनर्शिया नहीं रहेगी? जैसे ही उसकी स्टेट चेंज होगी तो नहीं इनर्शिया, तो इनर्शिया प्रॉपर्टी ने सरेंडर कर दिया। उसकी इनर्शिया प्रॉपर्टी उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल से वो एक्सटर्नल फोर्स का मुकाबला कर पाती। ओके सर, मतलब रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। आप कह सकते हो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और एक्सटर्नल फोर्स है लग रहा है, तो इसका मतलब है उसमें इतना अभी भी रेस्ट में है फोर्स लगने के बाद, तो उसका इनर्शिया इस लेवल का है कि वो उसमें कोई भी चेंज नहीं है, वो इनर्शिया अगर चेंज आ गया तो इनर्शिया से बाहर निकल गया, मतलब उसके तब उसके इनर्शिया प्रॉपर्टी ने एक्सटर्नल फोर्स के सामने सरेंडर कर दिया। I cannot retain my state anymore. ओके, समझ आ गया बेटे? ऐसे बारीकी से डिस्कशन करके आज हमने आपस में बहुत बातचीत करके पढ़ा, आपको भी ज्यादा क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट की और मेरे को भी। थैंक यू सर।
इनको लेक्चर समझ आ गया? एक बार ऐसे हाथ वेव करके बता दो, वेव करके उठो। थैंक यू, अगली बार मिलते हैं।